Yesterday in an interview, Salman said that during his training session for the film Sultan, when he walked out of the ring, he felt like a raped woman who couldn't walk straight. So, do you think it's an insensitive comment towards women? I would say कि it is very insensitive of the person who translates his lines into this such kind of a disgusting. It's called a disgusting translation by someone. He just said one thing, that it is a human agony he went through. The deepest human agony is like this when the woman is raped. So he was talking a metaphor. I went through that human agony when I was doing the exercise. And how can you translate this to such a stoop down? Those were lines in proper English. We didn't. So he has his own limitation of English. I have my own limitation of English. It does not mean that we are Oxford book or something. What he said is just he's a child. And I know one thing, Salman respects women like anything. I have worked with him. I have lived with him. He respects women. He's the first person to respect women. I know that. Do you? And how can you translate like this? Do you feel that so much has happened that he should come out and apologize at least? फिर वही बात मैं कहता हूँ कि साहब मैं इतने डीप एग्रीड सिचुएशन में गया हूँ उसके बाद मैं अपोलोजाइज करूँ यार आप भी नमस्ते हैं नमस्ते नहीं सर ये पहली बार नहीं है लेकिन अरे तो मैं क्या करूँ कोर्ट केस थोड़ी कर सकता हूँ यार Always stood out as a symbol of women empowerment. As an actress and as a human being, were you also hurt after listening to Salman's raped woman comment? I really request that we keep the questions very limited to the film. See, the thing is, we all agree, right? It's a horrible thing to say, and it is something which is extremely insensitive. But what I'd like to say is, let's not encourage that mentality where we want to point fingers at each other and want to feel greater, by just running people down, by trolling them. As a society, we have to take responsibility and stand united, and it's a disgrace for the whole society, not an individual. So like what Salim uncle says is right, that we're all sorry about it. It's not about an individual. We all collectively feel sorry for that thought process. अरबाज एक और सवाल कि बॉलीवुड में आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है अगेन आई थिंक सलमान खान आप इस Guys, let's stick to Gina. इसी का नाम है This is questions. not a platform for me to sit down and comment about other things, We are talking about the film. Let it be the film promotion. कभी आप मुझे अकेले में मिलोगे, आपको कुछ और सवाल पूछने मेरे से, हम तब जवाब देंगे। अरबाज लेकिन बात काफी सेंसिटिव थी। सलमान ने जो बात बोली है रेप वुमेन्स के बारे में, जो उन्होंने सुबह सुबह कहा, काफ़ी बवाल हुआ इस चीज़ को लेकर। आप पर्सनली क्या मानते हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने कहा था, क्योंकि आप भाई हैं, आप जानते हैं कि ये सवाल मुझसे आज किसी ने पूछा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि not every question or not every incident that happens with Salman, I am supposed to be answerable to that first and foremost. मतलब सलमान शादी कर रहा है नहीं कर रहा है, सलमान की गर्लफ्रेंड कौन है, सलमान क्या बोलता है। सलमान एक 50 साल का आदमी है जो अपने हिसाब से जो बोलता है, मीडिया को बोलता है, अपनी ज़िंदगी जैसे जीता है। मुझसे ये भी पूछा गया कि आपको पता है सलमान का है? मैंने बोला मैंने सलमान पे GPRS नहीं लगा रखा है कि वो कहाँ है, किधर है, किसके साथ बैठा है। अच्छा आपने नहीं देखा क्या हुआ? मैंने बोला नहीं मैंने नहीं देखा। आपने नहीं सुना क्या हुआ? मैंने बोला नहीं मैंने नहीं सुना। तो ऐसा होता है कि आई डोंट नो, आई कुडंट कमेंट टिल आई हर्ड व्हाट ही हैड सेड, जो मैंने शाम को सुना। अब कुछ चीज़ें होती हैं कि हम बातों में बोल देते हैं, उसका हम इंटेंशन देखना चाहिए कि वो इंटेंशन क्या था। मुझे डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि सलमान ने जो कहा उसके अंदर इंटेंशन बुरा नहीं था। इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ, जो अपन किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं या हमको बोलते हैं ना कि मेरे सर के ऊपर पहाड़ जैसा होता है, या कोई मैं गधे की तरह मैंने काम किया, बोला अरे अभी गधा वर्ड यूज़ किया आपने, तो कोई एनिमल एक्टिविस्ट आपके पीछे पड़ जाए। तो कभी कभी आप कुछ चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, आपका मतलब बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको डिसेंसिटाइज करो या आप उसके ऊपर ओवर सेंसिटिव हो जाओ, तो फिर आप किसी भी चीज़ के ऊपर एक विवाद या एक बवाल क्रिएट कर सकते हो। आई एम श्योर सलमान मस्ट हैव रियलाइज कि जो कंपैरिजन जो उन्होंने किया है वॉज नॉट मे बी अप्रोप्रिएट, एंड फॉर दैट इफ ही फील्स द नीड टू अपोलोजाइज, he will apologize or not apologize. Why are you asking me a question whether he should or not? I don't think it's fair. मेरा ओपिनियन मैं बोलूँ हाँ उनको अपोलोजाइज करना चाहिए,
या मुझे मैं बोलूं कि नहीं करना चाहिए. आई डोंट थिंक इट इज फेयर. आई थिंक इट इज हिज इशू. आपको अगर मौका मिले उनसे पूछने का तो आप पूछिए उनसे, बट आई शुड नॉट बी सेइंग कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेरा जो भी ओपिनियन है, शायद मुझे लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज बोली है, एंड अगर गलती से अगर उन्होंने बोला तो मे बी ही शुड probably give a justification. But I don't think I am entitled to make a comment and say that he has to apologize. I would hope that he gives a clarification for whatever, because controversy हो गई है तो उसका एक बनता है कि एक जवाब देना बनता है, क्योंकि people look up to him. He's got a lot of following and he's like a youth icon and whatever. So if he's made a statement that does not look very appropriate या कान को अच्छा नहीं लगा है, तो शायद I think in time he will give a statement. बट अरबाज सलीम साहब ने इस पे माफी मांगी है सलमान की बिहाफ पे. देखो सलीम साहब इज द फादर. अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ अगर कोई लोगों को लगता है कि कुछ गलत हुआ है, या कभी कभी आदमी इस वजह से भी माफ़ी मांगता है क्योंकि किसी को कोई चीज़ बुरी लगी हो कि यार चलो मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं लगा मैंने कुछ ऐसा कहा, लेकिन आपको बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ. हमेशा माफ़ी मांगने का रीज़न इस वजह से नहीं होता है क्योंकि यू आर जेन्युइनली सॉरी अबाउट व्हाट यू सेड और डन. समटाइम्स बिकॉज यू हैव हर्ट समबडी सेंटिमेंट्स, because you have said something that is not so appropriate, you apologize for that. And like I said, this is not the platform to talk about Salman and his issues. We have come here for somebody else's work. Let's finish that, and then maybe at some other stage we can talk about this. Thank you so I think it's not fair. These people are not interested in answering what Salman Khan has said at the end of the day. बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इस इंडस्ट्री के. अभी कंगना ने एक जवाब दिया, हम चाहेंगे कि आप भी एक छोटा सा कमेंट कर दें जो सलमान खान ने बयान दिया. देखिए मैंने वो वीडियो देखा था उनका, और मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल ही उनका इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करना, आहत करना. उन्होंने जो शब्द चुने थे और जो जिस तरीके से जो पैरेलल जो चुना था उन्होंने, वो गलत चुन लिया था उन्होंने. उनसे ये गलती हुई है. उन लोगों की तरफ से ये एक माफ़ी आ गया है, और आशा करते हैं कि आगे से वो उनका शब्दों का चुनाव सही रहेगा. सलीम साहब की तरफ से माफ़ी है, सलमान ने माफ़ी नहीं मांगी सर. नहीं, वो भी माफ़ी मांग लेंगे. मैं चाहूँगा कि वो भी आके माफ़ी मांग लें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनकी सोच गलत नहीं थी. वो औरतों की बहुत इज़्ज़त करते हैं. जो आदमी इतना ज़्यादा समाज सेवा काम करता है वो औरतों के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता. शब्दों का चुनाव गलत हो गया, एक्साइटमेंट में हो जाता है. हम लोग भी कभी इंटरव्यू देते हैं तो कभी अपनी बातें कह नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं. कभी शब्दों का चुनाव गलत हो जाता है. आगे से मैं जानता हूं कि वो जिम्मेदारी से शब्दों का चुनाव करेंगे. सर अभी आइफा जाएंगे, जाने दो ना प्लीज़. देखिए जो स्टेटमेंट देता है वो उनके ऊपर है. सॉरी बोलना या ना सॉरी बोलना आप उनसे पूछिए. अगर यू नो व्हाट आई एम सेइंग, मेरे ऊपर नहीं है किसी को सलाह देने के लिए. ग्रोन अप लोग हैं, जो सही समझे वो करे. आप रिएक्ट करना चाहेंगे कुछ? वो तो एक मेटाफोरिकली उन्होंने यूज़ किया था उसका. वो तो अभी डिस्कशन वो ख़त्म भी हो गया. अभी उसको बार बार से रिपीट करने या बार बार क्वेश्चन पूछने से उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं. और एक्चुअली सब लोग लाइक बेस और काफ़ी लोगों ने कहा कि सलमान से अपोलोजाइज, उन्होंने माफ़ी मांगने से, तो आपको क्या लगता है उन्होंने आके पब्लिक में कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए उस चीज़ के बारे में? देखिए मेरे ख्याल से उन्होंने वो जो ट्वीट किया था वो तो हटा भी लिया है. वो तो एक देखिए इंटेंशन देखा जाता है कि किसका इंटेंशन किस तरीके का है. आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई उनका इस तरह का इंटेंशन है. थैंक्स. Australia for an event. Sir, yesterday everything was trending everywhere, sir. About the comment on that. Congratulations. But sir, that's it. What is there to say? हो गया ना अभी. New, something new now. कुछ नया ढूंढो. Sir, yesterday everything was trending everywhere, sir. About the comment on that. Congratulations. But sir, that's it. What is there to say? हो गया ना अभी. New, something new now. कुछ नया ढूंढो.
Yesterday in an interview, Salman said that during his training session for the film Sultan, when he walked out of the ring, he felt like a raped woman who couldn't walk straight. So, do you think it's an insensitive comment towards women? I would say कि it is very insensitive for the person who translates his lines into this such kind of a disgusting. It's called a disgusting translation by someone. He just said one thing, that it is a human agony he went through. The deepest human agony is like this, when the woman is raped. So he was talking a metaphor. I went through that human agony when I was doing the exercise. And how can you translate this to such a stoop down? Those were lines in proper English. We didn't. So he has his own limitation of English. I have my own limitation of English. It does not mean that we are Oxford book or something. What he said is just he's a child. And I know one thing, Salman, he respects women like anything. I have worked with him, I have lived with him. He respects women. He's the first person to respect women, I know that. Do you and how can you translate like this? Do you feel that so much has happened that he should come out and apologize at least? फिर वही बात, मैं कहता हूँ कि साहब मैं इतना डीप एग्रीड सिचुएशन में गया हूँ, उसके बाद मैं अपोलोजाइज करूँ? यार आप भी नमस्ते हैं, नमस्ते हैं, नमस्ते। नहीं सर, ये पहली बार नहीं है, लेकिन अरे तो क्या, तो मैं क्या करूँ, कोर्ट केस थोड़ी कर सकता हूँ यार।